Our topic for today is humerus. This is humerus. Normally you should bring your own bones जो तुमने खरीदा है, तो पढ़ने में आसानी होगा, बट कोई लाया है, कोई नहीं लाया. This should not be the case. So I don't know तुम्हें मैं कैसे दिखाऊँ या जो भी है. जैसे कि ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है. सबसे पहले यू विल बी आस्क्ड अबाउट साइड डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमरस बोन, ठीक है. सो इज ए लॉन्ग बोन. दिस इज ए लॉन्ग बोन. ओके. एवरी लॉन्ग बोन इज हैविंग दिस अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट, ठीक है. नाउ देयर आर 3 points that you need to tell to the examiner, okay, in favor of this bone to be a left-sided humerus. Okay, this is the upper part, this is the head, this is the head. Okay, this is the bone we are seeing from the anterior aspect, this is the bone we are seeing from the posterior aspect. This is the bone we are seeing from the anterior aspect, this is we are seeing from the posterior aspect. Okay, this is the head. Now these 3 points you need to tell to the examiner when he asks why this is left or right. ये तीनों points बोलना है, ठीक है. The first one, the upper end is easily distinguished by the presence of head. Head हमेशा ऊपर रहेगा. Okay, so in the upper end there will be this rounded head that will be present. ये पहला point है, ठीक है. ये तूने बोल दिया अपर, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ये अंदर की तरफ है, ये ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है. ये दिस हेड विल बी डायरेक्टिंग मीडियली. मीडियली laterally I hope you know. So if this is left sided then it is directing medially slightly upward एंड थोड़ा सा ऐसा बैकवर्ड रहते हैं ऐसा करके, ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट. ओके, वेयर द मीडियल एंड लेटरल साइड यू विल गेट टू नो बाय द डायरेक्शन ऑफ द हेड, वेयर द हेड विल बी फेसिंग मीडियली अपवर्ड एंड थोड़ा सा बैकवर्ड. ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट. So by this logic it can be lying like this also. Okay, this is also medially, not backward but it is facing forward. But ये ऐसा क्यों है? Why this is left side? This is because of this green area that you are seeing. It will lie anteriorly. ये पीछे ऐसा कुछ है नहीं. This is the thing that will be lying anteriorly. What are these? If you see, there is two bony prominence. These two. एक ये वाला, एक ये वाला. ओके, दीज आर कॉल्ड ट्यूबरकल्स. दिस इज छोटा वाला लेसर ट्यूबरकल, दिस इज बड़ा वाला ग्रेटर ट्यूबरकल, ठीक है. सो इन दोनों के बीच में इफ़ यू सी देयर इज अ गैप, इफ़ यू कैन सी देयर इज अ गैप एंड दिस गैप विल बी लाइंग एंटीरियरली. ओके, सो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोमिनेंट वर्टिकल, दीज आर कॉल्ड tubercles. Abhi, if you know what is inter and what is intra, do you know what is intra? Intra is within, खुद के अंदर ही. Okay, so this is inter or intra. Inter. This is called intertubercle. This is lesser tubercle. This is greater tubercle. This is intertubercle. और ये this is a depression. These are called sulcus. Okay, this is intertubercular sulcus that will be lying anteriorly. ऐसे रहेगा. ओके, सो दीज आर द 3 points दैट यू नीड टू टेल टू द एग्जामिनर, एंड इफ दिस हेल्प्स आर इन पासिंग एग्जाम, देयर इज नो हार्म इन दैट. ओके, दीज आर द 3 points that you need to remember. Okay, okay, next. So this is about the head part. Okay, in the upper part there is this head. Okay, this big head. Okay, now it is written here like same was only. It is directed medially upward and थोड़ा सा backward. Okay, ये किस part से attach होता है? Why does it attach to? अभी this is the third bone you are studying, and what do you think after
studying the bones of head, neck, brain, and this upper limb, lower limb, thorax. कहाँ पे अटैच होता है ये? Nice. Okay. So it attaches to the scapula. ठीक है? If you see scapula अगर तूने देखा है, then you will see the glenoid cavity of the scapula is very small according to in comparison to this head. Okay. So this is the most unstable joint of our body, the shoulder joint. Easily dislocate हो जाता है. Okay. निकल आता है इससे. ठीक है? यही है. ऐसा कुछ है नहीं. Now this one. This is the upper end. This is about the upper end. Okay, in the upper end, we see this lesser tubercle, greater tubercle. If this is the left-sided bone, greater tubercle is lateral or medial to the greater tubercle? Lateral. If this is the left-sided humerus, and this is the lesser tubercle, this is the greater tubercle. Is it lateral or medial to the greater tubercle? It is medial, ना? ये मेरे इस साइड का है तो ये मीडियल है ना, ये इसके मुकाबले तो मीडियल ही है. दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू. ओके. एंड दिस इज द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्पॉटर. ओके. स्पॉटर में पूछ सकते हैं एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि पूछेंगे भी. ओके. व्हाट इज द मसल के बारे में आई विल टेल यू लेटर. ठीक है. नाउ इतने देयर आर two necks. Neck. What is neck? Neck is something which is joining the head with the rest of the body. This is neck. Okay. This is neck. This is the humerus. Humerus is having neck. Neck क्या है? That is joining the head with the rest of the body. It is having two necks. दो. One is anatomical neck. Anatomical neck मतलब जो हमको दिखेगा इधर. दिस पार्ट इज द एनाटोमिकल नेक. ये पिक्चर में दिखाता हूँ. दिस पार्ट, दिस वन, ये वाला पार्ट, दिस इज द एनाटोमिकल नेक. एनाटोमिकली वी सी दिस. ओके. देयर इज ऑल्सो अदर नेक कॉल्ड सर्जिकल नेक. ओके. दिस इज दिस वन, ये वाला पूरा ऐसा राउंड करके पीछे वाला ऐसा. हाँ, इस जगह पे. दिस इज ऑल्सो joining the upper part with the lower part. This is called surgical neck. ठीक है. अभी surgical neck क्यों बोलते हैं उसको, ये बाद में बोलता हूँ. because it is surgically important. because इधर अगर कोई ऑपरेशन होना है तो there is some specific things that you should be cautious of. okay. तो इसलिए इसको surgical neck बोलते हैं. क्यों बोलते हैं बाद में बोलता हूँ. ठीक है. so shaft is this part. now this is the shaft. this is upper end, this is shaft. अभी shaft में है क्या I don't know. ये ले देख ले. on the lower end this whole thing is the shaft. ठीक है. in the lower end ये जो दिख रहा है तेरे को. ठीक है. तेरा नाम क्या है? आदित्य. ठीक है. बैठ आदित्य. ये जो लोअर एंड में दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, देयर इज टू बॉर्डर. दिस इज मीडियल बॉर्डर, दिस इज लेटरल बॉर्डर. पीछे ऐसा कोई बॉर्डर है नहीं. यू कैन नॉट फील एनी बॉर्डर्स. बॉर्डर मतलब रीच फील हो गए. ठीक है. बट इफ़ यू फील इट फ्रॉम द फ्रंट, देख पकड़ के फ्रॉम द फ्रंट, दिस इज द, हाँ तेरा बोन का फ्रंट वो घुमा ले. हाँ ये देख इधर फील हो रहा है रीच. This is the anterior border. Okay. So it is having three borders: medial, lateral, and anterior. Now you will tell me. तू बता. How many surface will it have? कितना surface रहेगा इसका? इसको दे दे. How many surface? What? ठीक है. There will be three surface. ठीक है. Anterior और medial के बीच में एक होगा. Anterior और lateral के बीच में एक होगा. और ये मीडियल और लेटरल के बीच में एक होगा. व्हाट विल बी द नेम्स? एंटेरोमीडियल. ये एंटेरियरली भी है और मीडियली भी है. सो दिस इज एंटेरोमीडियल, दिस इज एंटेरोलेटरल. और इसका नाम क्या होगा? एंटेरो पोस्टीरियर. कैसे होता है? एंटेरियर सिर्फ पोस्टीरियर. दिस इज पोस्टीरियर. पोस्टीरियर में है ना ये पूरा. सो दीज आर द थ्री सरफेस that is made with this border. Okay.
ये नहीं आता, मतलब पहले, मतलब नॉर्मली मीडियल लेटरल साइड डिटर्मिनेशन, इसका साइड डिटर्मिनेशन। ओके ठीक है, दिस इज द हेड, ये याद रहेगा, दिस इज द हेड। ओके, तो दिस हेड विल बी अपवर्ड्स ऑन द अपर एंड, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज, ये मीडियल है या लेटरल है, ये कैसे पता चलेगा? दिस, इसके पहले ये देख लेना, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये लेसर ट्यूबरकल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है, ये जो बीच का, ठीक है, ये एंटीरियरली रहेगा, ठीक है, एंटीरियरली, ठीक है। और ये जो हेड है ये मीडियली रहेगा। अभी तू दो तरीके से पकड़ के देख ले, ये ऐसा पकड़ने से ये एंटीरियरली है, ये एंटीरियरली कैसे है? अगर इफ आई एम सेइंग दिस इज लेफ्ट साइडेड, ये एंटीरियरली है, ये एंटीरियर है या एंटीरियर ये है? ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। हाँ, तो ये एंटीरियरली नहीं है ना? नहीं, ये पोस्टीरियर। हाँ, तो बट हेड मीडियली है। हाँ। तो अगर अभी पकड़ा हेड इज मीडियली, ये एंटीरियरली है। हाँ हाँ हाँ, तो वही है, ये राइट साइडेड है, ओके। समझी? these are just points, जान ले बस। ओके, that is, this is the medial border। अगर if you trace it upwards, ऐसा ट्रेस करते करते, ठीक है, you will see ये लेसर ट्यूबरकल के नीचे तक जाता है। ओके, ये ओरिजिनल बोन में ज़्यादा समझ में आएगा, अगर देखना है तो देख। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग ओरिजिनल बोन्स? जिसने खरीदा है, किसी ने नहीं खरीदा? ओके ठीक है। और ये दिस इज़ द एंटीरियर बॉर्डर। ओके, एंटीरियर बॉर्डर को अगर ऊपर से ऐसे ट्रेस करता रहेगा, जहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे गया? ये ग्रेटर ट्यूबरकल में गया, ठीक है। ये मीडियल वाला लेसर ट्यूबरकल के नीचे तक जाता है, एंड द एंटीरियर बॉर्डर ग्रेटर ट्यूबरकल तक जाता है। ओके, दिस इज जस्ट ए पॉइंट। ये नाउ दिस आर द बॉर्डर जो मैंने बोला है। नाउ एक चीज़ है जिसको बोलते हैं डेल्टॉइड मसल है, ठीक है। इधर में एक रफ एरिया है, ठीक है, इधर में थोड़ा सा है, आई शो यू कौन सा वाला डेल्ट। इसमें भी इतना डोमिनेट है, वाइस उसको दे, अच्छा उसको दे, उसको दे, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाइट, ठीक है। तो इसमें ये वाला पार्ट, रफ पार्ट और रफ सरफेस। ओके, लास्ट में बोन दे दूंगा, जिसको देखना है देख लेना। ओके, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट, अगर ये लेफ्ट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड ह्यूमरस है, ऑन द लेटरल एस्पेक्ट इन द मिड शाफ्ट, शाफ्ट का मिड पार्ट इज मिड शाफ्ट, इस जगह पे देयर इज ए ट्यूबरसिटी या फिर बोनी प्रोमिनेंस, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, जहाँ पे डेल्टॉइड मसल लगता है। ओके, कहाँ पे? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इज डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टॉइड, और एक चीज़ इज पीछे वाला पार्ट, पीछे सीधी ये दिख रहा है, ये इसमें तो बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकता ये किधर से गया है, बट इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज पोस्टीरियर एस्पेक्ट। इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट देयर इज ए ग्रूव, ग्रूव मतलब एक ऐसा जगह, ठीक है, ऐसे ऊपर होके ये जो आ रहा है, ये बीच का जगह, दैट इज ए ग्रूव, ठीक है। ये ऐसा करके एक ग्रूव जाता है लेटरली, ऐसा, ये मीडियली है, ये लेटरली, तो ये ऐसा करके एक ग्रूव जाता है, जिसको बोलते हैं रेडियल ग्रूव। ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसको बोलते हैं रेडियल ग्रूव। इस ग्रूव में से रेडियल नर्व जाता है,
किसी ने पढ़ा है ब्रैकियल प्लेक्सस? किसी ने देखा है एटलीस्ट? नो, नाइस। एंड किसी को याद है कि व्हाट आर द पेरिफेरल ब्रांचेस? नो, नाइस। ठीक है, चलो। रेडियल ग्रुप पीछे से जाते हैं, ओके? जाना है, जाके देख लेना। नाउ इन द लोअर एंड, ओके, द अपर पार्ट shaft is done. In the lower part you will see this thing. These are the lower end of the border. ये border है, ये medial है, ये lateral है, ठीक है? Now this thing, these are also bony prominences. जो भी इसका नाम होगा it will be medial because this is medial. This is medial epicondyle. This is lateral epicondyle. This part, okay? कौन सा part? I will show you. This part, this one and this one. This is lateral epicondyle. This is medial epicondyle. Okay. If you are seeing these borders, ये normally थोड़ा सा blunt है, but in the lower aspect it is very sharp. अगर feel होता है तो it is very sharp. So these are called ridges. Ridge बोलते हैं उसको. These are sharp borders on the lower end. These are called ridge, and these are condyles. So these are supracondylar ridge. Supracondylar ridge. Okay. These things will be asked. ये सब पूछा जाएगा because the parts of the bone will be asked. Because this is the basic things. अगर if you are able to tell the name of the bone and the site determination, then the parts of the bone will be asked. ठीक है? Now there, this one and this one, these two things अगर ये दिख रहे हैं तो these two, ये वाले पार्ट, ओके, दीज आर द लोअर अपेंडेज और ए बोनी प्रोमिनेंस. एवरीथिंग इज बोनी प्रोमिनेंस. दिस वन, दिस वन, दिस वन, यहाँ पे बोनी प्रोमिनेंट होकर रखे हैं, बोन प्रोमिनेंट होकर रखे हैं. दीज आर बोनी प्रोमिनेंट, ओके. दीज आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड कैपिचुलम, रेडियस या अल्ना. कौन सा मीडियल है, कौन सा लेटरल है? रेडियस इज, रेडियस मीडियल, अल्ना इज, ओके, ये उल्टा है, ओके. अल्ना इज ऑलवेज मीडियल, रेडियस इज lateral. If you stand in anatomical position, there are two bones here. This one is the radius, this one is the ulna. ठीक है. अभी जब अल्ना पढ़ाया जाएगा, you will know ये क्या है. इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया, ठीक है. ट्रोक्लिया बोलते हैं इस पार्ट. दिस इज द मीडियल पार्ट. यहाँ पे मीडियल बोन जो है फोराम का, दैट इज अल्ना, उसका एक पार्ट लगता है ट्रोक्लिया. और दिस इज कॉल्ड कैपिचुलम. यहाँ पे जो लेटरल बोन है फोराम का, दैट इज रेडियस, उसका हेड लगता है, ओके. ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम. नाउ और एक स्लाइड बिफोर वी गो टू द important muscle attachments, okay. Yeah, this thing, this one, ये दिख रहे हैं, एक शेलो पार्ट अंदर घुसा हुआ है. ये एक है, पीछे वाला एक है, और ये जो एक है इसके साइड में भी थोड़ा सा एक शेलो डिप्रेशन है, ठीक है. अभी इनके नाम है, और इधर देयर इज सम बोन दैट इज अटैच्ड, ओके. पीछे वाला बोल दो, दिस पीछे वाला इज ओलेग्रेनॉन फोसा. फोसा इज ए डिप्रेशन, ओके. फोसा मतलब डिप्रेशन, तो दिस इज ओलेग्रेनॉन फोसा, ओके. यहाँ पे अल्ना का पार्ट लगता है आगे, ठीक है. एंड इन द फ्रंट दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस इज द रेडियल फोसा. इधर में कैपिचुलम है जिसमें रेडियस का हेड लगता है आके, और इसके ऊपर जो है दिस इज कॉल्ड रेडियल फोसा. दिस माइट बी आस्क्ड कि कौन सा ये वाला देखे, दे माइट आस्क इन द स्पॉटर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्ट, ओके. और यहाँ पे कौन सा बोन लगता है आके, दिस इज रेडियल फोसा. एंड ये बड़ा वाला दैट इज कोरोनोइड फोसा, ओके. दिस आर द फोसा. और इस पर क्या लगता है, व्हेन यू आर टॉट अल्ना यू विल सी यहाँ पे अल्ना का ही पार्ट आके लगता है. सो दीज आर द things, these are the parts of bone that you should know, part of humerus, okay. The first question will be identify the bone, okay, in the table. Second question, second thing is you will hold it with right or left hand. Don't do the mistake, always mind your hand, if it is right or left. If it is this is left, I will hold it with left hand.
एंड टेल दोस पॉइंट्स ऑफ साइड डिटर्मिनेशन. इसके बाद उनका मर्जी हो क्या पूछे. ठीक है. सो नाउ देर आर सम मसल्स दैट आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो. जैसे कि ये 3. ऑल ऑफ यू शुड ड्रॉ दिस 2 डायग्राम. ये डायग्राम ड्रॉ करो. आई वुड हैव आस्क्ड यू टू क्लिक पिक्चर्स बट ड्रॉ करने से ज़्यादा याद रहेगा. ड्रॉ दिस 2 डायग्राम. This one is the anterior aspect. This one is the posterior aspect. You don't need to draw the green lines, okay? Just the blue and the pink ones. We'll start with this 4, okay? 1, 2, 3, 4. Important muscles for your shoulder, okay? This is a muscle that is attached here. दिख रहा है? दिख रहा है? That is called supraspinatus. ठीक. Now how do you describe it? कहाँ पे लगा है ये? Where is this attached to in the humerus bone? This is the anterior aspect of humerus. This is the posterior aspect of humerus. ये humerus का कौन सा पार्ट है? जहाँ पे ये supraspinatus लगा है. What is the name of the bone that you are holding? Bone कहाँ पे है तेरा? क्या नाम है इसका? Humerus. And if it is left or right? एक ले ले. Is it left or right? Left or right? वही क्वेश्चन है. It is left or right? Then I will be asked. Left. If it is left, again you need to hold it with left hand. अभी तो बोला है. Is it your left hand? Left है right है? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ. कहाँ से है तू? Where are you from? ত্রিপুরা. যখন এটা লেফট সাইডের হবে লেফট হাত দিয়ে ধরবি. লেফট হাত. লেফট হাত. ডিসলেক্সিয়া আছে নাকি? শুনতে পাচ্ছিস না? আচ্ছা. When it is left sided bone, you will hold the bone with left hand. তুই বুঝতে পারছিস? Why it is left sided? Why? Posterior side. This can be a point, but these were not the points that I have told you. Those three are the main points that you need to tell. You cannot tell fast about the olecranon fossa. You cannot do that. Now, according to this, what it is left or right? Left. Why left? Because दे पास कर दे. ओके. Left or right? Why? No idea. Okay. If this is a muscle called supraspinatus, where is this attached? Here. ये कौन सा पार्ट है ह्यूमरस का? ये कौन सा पार्ट है ये? What is the name? No. Name of which part?
What is written here? दिख रहा है ये पीछे से? हाँ? Greater tubercle. Okay. And what is the other tubercle in the humerus? इसको छोड़ के और कौन सा tubercle है? You don't know. Nice. Pass. Pass. बैठ जा. What is the other tubercle except for greater? What is the name of the other tubercle except for greater tubercle? Lesser tubercle. Okay. Can you tell me the attachment of this muscle? ये कहाँ पे लगा है? Do you know? Scapula. This is humerus. ये कहाँ पे? इस bone पे where is it attached? बैठ जाओ. Okay. This is greater tubercle. If you have seen this one, this is greater. It will be lying laterally. This is greater tubercle. This is lesser tubercle. This will be lying medially. Now ये यहाँ पे लगा है. तो ये कहाँ पे होगा? This is attached. This supraspinatus. This is attached in the upper aspect of greater tubercle. This is the normal thing that you should say in the exam. Okay. ये कहाँ पे है? On the upper aspect of greater tubercle. ठीक है? This is the greater tubercle. ये पूरा ये वाला part भी. Okay. This whole thing is the greater tubercle. This is the upper part of greater tubercle, and supraspinatus is attached in the upper part. Okay. Now there is this muscle SITS, sits. This is a mnemonic that you should remember. This one SITS. Okay. ये चार है. 1, 2, 3, 4. Okay. These things form the rotator cuff. Write down rotator cuff. This might be asked in your exam. That explain rotator cuff. Rotator cuff are the muscles that stabilize the shoulder joint. Okay. Shoulder joint को SITS. SITS. Rotator cuff muscles. These are the 4 muscles that these are called rotator cuff. 1, 2, 3, and 4. First is SITS. That is the supraspinatus. इसके बाद आता है this one. This is the infraspinatus. This one. ये कहाँ पे अटैच है? तो बता. इसका अटैचमेंट बता. कहाँ पे? When you are asked a question, you should stand up first. इसका अटैचमेंट कहाँ पे? This is the anterior aspect of humerus. This is the posterior aspect of humerus. ये कहाँ पे है ये? सुनाई नहीं दे रहा. I cannot hear you. This is attached on the greater tubercle, on the posterior aspect. ठीक है? अगर greater tubercle, this is the superior aspect. This is the anterior aspect of greater tubercle. This is the posterior aspect of greater tubercle, and this infraspinatus is attached. Whenever you are asked about rotator cuff, you will need to draw this diagram. Okay, this is infraspinatus attached on the greater tubercle on the posterior aspect. Okay, and posterior, or if you want to be more specific, this is the middle part. This is the inferior part. जहाँ पे teres minor bulk के एक मसल है, that is attached here. Okay, SIT and S. This is teres minor कहाँ पे लगा है? On the posterior aspect of greater tubercle on the lower part. ठीक है? और ये कहाँ पे लगा है? Subscapularis. Take a guess. This is attached in the lesser tubercle, subscapularis. So these 4 muscles are called SITS. These are called rotator cuff muscle. Rotator cuff might be asked in your exam. Okay, this might sound alien or hard also to you, but if you read once or twice, I hope you will get it. Okay.
नाउ दिस वन, ये पूछता ही पूछता है, इफ यू आर गिवन ए स्पॉटर फ्रॉम ह्यूमरस, दिस थ्री muscles will be there. Okay, there is this mnemonic called lady between two measure. Okay, what is that? ये वाले पार्ट, ये तीनों, this is the lady. Lady is latissimus dorsi. This will be asked, कौन सा लगा है? This is two measure, one measure, two measure, teres measure, pectoralis measure. ठीक है. Now, if I tell you that latissimus dorsi is attached in the intertubercular sulcus, दोनों ट्यूबरकल के बीच में जो ग्रूव है, the lady, that is latissimus dorsi is attached there. ठीक है. You will tell me pectoralis major कहाँ पे लगा है? बता. If you can take a guess. Anterior side of shaft. Okay, shaft. And if you can more specific, this whole thing is na, this is tubercle. Okay, this is lesser, this is greater tubercle. Okay, so on the lateral part of intertubercular sulcus. ठीक है, ये intertubercular sulcus है, इसका ये lateral part है, ये इसका medial part है. तो इन द lateral part of intertubercular sulcus pectoralis major is attached. Okay, याद रहेगा. वैसे ही on its medial aspect the teres major is attached. Okay, these three, there is high chance that this question will be asked in your spotters and you will make mistake. And वो हर बार ही होता है, इस बार भी. Just star mark करके रख दे. If you are asked, you should not miss that. Okay, these two. ये दिस इज द पेक्टोरलिस मेजर. ओके, ये मीडियली रहेगा हेड, तो ये मीडियल साइड है ना, तो ये इसके लेटरल साइड है. दिस इज द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, तो ये इसके लेटरली है, ये इसके मीडियली है. ओके, दिस क्वेश्चन बार बार पूछा. इनफैक्ट इफ यू आर गिवन दिस इन द टेबल वेब ऑल्सो यू विल बी आस्क्ड. देख लेना मेजर माइनर जो भी है. नाउ डेल्टोइड, मैंने अगर बोला है और तुमको अगर याद है, डेल्टोइड इज अटैच्ड हियर. इट इज इजी टू रिमेंबर. डेल्टोइड ट्यूबरसिटी. ओके, ओरिजिनल बोन जाके देखना, उधर ट्यूबरसिटी मिलेगा. ओके, उधर पे ये लगा है. नाउ और छोड़ के ब्रैकियल्स. whenever you are shown the front of the arm in the dissection hole, उधर में एक मसल दिखेगा. there are three muscles there. okay, biceps, coracobrachialis and brachialis. now there is this muscle called brachialis. एकदम नीचे है, तीन मसल है. सबसे नीचे brachialis है, एकदम पतला और फ्लैट, और इस पे चिपका हुआ है, एकदम चिपका हुआ है, उठता भी नहीं है. when you see the biceps, ये उठ जाएगा, इधर उधर घूमेगा, बट वो बैठा हुआ है. ओके, ये वाला वही है. that is this muscle that you will see. ठीक है, the brachialis muscle. now if I ask you, बता brachialis कहाँ पे लगा है? brachialis, what is the attachment? inward. हाँ, brachialis, this one, ये कहाँ पे है? front of it is in the front on the lower end of the shaft. Okay, better. ये है brachialis. now in the dissection hall you will be told brachialis को hybrid muscle क्यों बोलते हैं. okay, ये this is your task to find out what is hybrid muscle and why brachialis is called hybrid muscle. ये देख के आना. I will be asking you a question. We don't mention anterior lateral. Entero. Attachment, muscle attachments, when we don't mention anterior laterals or this as such. We just say lower end of the shaft या medial end of the shaft. नहीं, इधर भी कुछ चीज़ें हैं जो, ये तो बड़ा मसल है, दिस इज बिग मसल, तो ये एंटीरियरली एंड ऑन द लोअर एंड ऑफ शाफ्ट बोलने से हो जाएगा.
बट ये जो मसल है, ये वाले जो मसल है, दैट यू नीड टू स्पेसिफाई ये कहाँ पे है, बोलते हो मुझे बट दिस वन। कभी ये सुना है किसी ने व्हाट इज या गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, कभी कभी सुना है? तुमने सुना है टेनिस एल्बो, सुना है कभी? क्या है वो, पता है कुछ? दिस इज ए मेडिकल कंडीशन, ठीक है, मैं बोल सी दिस इज अनदर प्रोनेटर टेरेस, ये दिखाया जाएगा, यू विल बी शोन दिस मसल, दिस इज ए मसल ऑफ फोरआर्म, ठीक है, प्रोनेटर टेरेस। इफ आई आस्क यू ये कहाँ पे लगा है, क्या बोली, कहाँ पे है? मीडियली एंड लोअर एंड ऑफ, लोअर एंड ऑफ in the medial border on the lower end of supracondylar ridge, these are called ridges, ठीक है, coronary teres। ये एक बार देख लेना, याद आ जाएगा, ये कहाँ पे लगा है, और जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा मैं वही बोल रहा हूँ, ओके। दिस टू 14 and 15 ये बोलते हैं, सी ये वाला और ये वाला, दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज फोरआर्म, ओके, दिस इज फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, इधर जो मसल है दैट हेल्प दिस फोरआर्म टू फ्लेक्स, इधर वाले जो मसल है दिस इज एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, इधर में जितने भी मसल है 12 मसल, दे हेल्प द फोरआर्म टू एक्सटेंड, इधर वाले फ्लेक्स करते हैं, इधर वाले एक्शन करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। नाउ इधर में दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, दिस वन इज, ये इस नाम क्या है इसका, सुप्राकॉन्डाइल, नो, तो सुप्राकॉन्डाइल रीज इज दिस वन, ये इधर के एक चीज बनता है जिसको बोलते हैं मीडियल एपिकॉन्डाइल और इसको बोलते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल, ओके। नाउ इधर जो फ्लेक्सर मसल है फोरआर्म के, ओके, दिस इज कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, इधर में बहुत सारे मसल है जो इधर से ही पैदा होते हैं, इधर से ओरिजिन होता है, ओके, हाथ में हाथ तक जाता है ऐसा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, क्यों? क्योंकि जितने भी फ्लेक्सर मसल है इधर से पैदा होते हैं, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, इधर में से जितने मसल होते हैं वो सब पीछे जाते हैं और फोरआर्म को एक्सटेंड करते हैं, ये फोरआर्म को फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल की उधर है, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल की उधर है, ठीक है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू आर शोन द बैक ऑफ द आर्म, एक मसल है जिसको बोलते हैं ट्राइसेप्स, हैविंग 3 हेड, ओके, medial head, lateral head and long head. This one, this is the posterior aspect of humerus. हम लोग जब बोलेंगे the back of the arm, you will be shown the triceps with all the head, ठीक है, जिसमें से ह्यूमरस में दो लगता है, ये वाला और ये वाला, this is also triceps, this is also triceps, this is the medial head of triceps, this is the lateral head of triceps. Now this is called radial group, if you remember, इसमें से radial nerve जाता है। Now if I ask you, if you have to describe this in words, what will you tell? बता, इसको describe कर, describe this in words. Question is, how do you describe this? What is this attached? Where is this attached in the humerus? The triceps, lateral head. Okay, I am telling you this is radial group, this is the posterior aspect of the humerus. Now tell me in words, where is this attached? No idea. Anterior, बोल तो रहा हो ये posterior aspect है, anterior कहाँ से आएगा? This is the anterior.
दिस इज पोस्टीरियर। बैठ जा, तू बता। पोस्टीरियर साइड ऑफ, posterior side of lateral, posterior side of lateral is not even a word, but so the triceps lateral head dissection में फिर से बोला जाएगा, तब शायद तुम कनेक्ट कर पाओ कि ये इधर। आई नो दिस साउंड एलियन, कि आप बोल रहे हो कि आप नहीं बोल रहे हो, बट इसमें से बहुत सारे ऐसे मसल्स है दैट विल बी शोन इन द डिसेक्शन, देन यू विल सी ओके दिस वाज टोल्ड इन द क्लास दैट ब्रैकियलिस है। तो देखोगे दिखेगा कि ब्रैकियलिस इधर ऐसा चपटा करके ह्यूमरस पे लगा है, तब याद आएगा कि ब्रैकियलिस ओके इधर ऐसा बोला गया था। ओके, तो वैसे ही ट्राइसेप्स भी दिखाया जाएगा। तो दिस इज on the posterior aspect of humerus above the radial groove, okay, and this one triceps medial head it is on the posterior aspect of humerus, okay, on the lower of below the radial groove, okay, ये ऐसे बोलना होगा। these are the things, जैसे कि ये पूछ सकते हैं ओके इन द डिसेक्शन के स्पॉटर में ये ट्राइसेप्स ऐसा मार्क करके दे देगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू आइडेंटिफाई, फिर उसका ओरिजिन इंसर्शन या फिर नब सप्लाई लिखना होगा, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स अबाउट द मसल ऑफ द अटैचमेंट। नाउ सम क्लिनिकल पार्ट्स, क्योंकि बार बार जैसे कि सर्जिकल नेक मैंने बोला था, देयर इज एनाटॉमिकल नेक, देयर इज सर्जिकल नेक। अभी सर्जिकल नेक उसको क्यों बोलते हैं, इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला था इधर से सब वेन आर्टरी आएगा, फिर क्या होगा एक्सिलरी होगा, इसके बाद क्या होगा वही है, मैं बोलूँगा तुम बोलोगे वही होगा, बट ब्रेकियल आर्टरी होगा, इसके बाद लेफ्ट रेडियल होगा, अल्नर होगा, दो भाग होगा। नाउ यहाँ पे कौन सा है, एक्सिलरी आर्टरी है, और इधर कौन सा बोन है, ह्यूमरस है। सी दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस इज द ह्यूमरस, दिस इज द एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी में से दो ब्रांच निकलते हैं ऐसा, ये पीछे जाता है, दिस डॉट डॉट इज पोस्टीरियरली, ओके, एंड दिस इज एंटीरियरली। इसको बोलते हैं एंटीरियर ह्यूमरल सरकम्फ्लेक्स। सरकम्फ्लेक्स मतलब किसी को ऐसा जकड़ लेना, ओके। एंटीरियर ह्यूमरल सरकम्फ्लेक्स, पोस्टीरियर ह्यूमरल सरकम्फ्लेक्स। नाउ इन द ओल्ड एजेड पेशेंट्स देयर इज a high probability कि वो गिर जाए, and because their bone density is low there might be trauma to the neck of the humerus, वो टूट जाता है। whenever the surgeon, orthopedic surgeon goes for the surgery, अगर he is being थोड़ा सा भी reluctant then this artery जो उसको ऐसा घेर के रखा है कट लग जाएगा, there will be very much blood loss, okay, and it will be a devastating situation, okay, that's why it is called surgical neck। याद रहेगा, याद रहेगा तो अच्छा है। देन उस दिन मैंने ये भी बोला था देयर आर सम पेरिफेरल ब्रांचेस, एक्सिलरी आर्टरी बोला था, अल्नर आर्टरी बोला था, रेडियल आर्टरी बोला था, मीडियन आर्टरी, आर्टरी नहीं सब नाम, सारे नाम बोले थे। जैसे कि ये वाले मैंने बोला था इधर से मस्कुलोग्रेनियस है, रेडियल है, एक्सिलरी है, मीडियन, अल्नर, ये अगर तुम ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ते तुमको याद रहेगा। ओके, नाउ मैंने पोस्टीरियर कॉर्ड से बोला था दो निकलते हैं, एक एक्सिलरी एक रेडियल, ये दो पेरिफेरल ब्रांचेस, ठीक है, पेरिफेरल ब्रांचेस। अभी ये एक्सिलरी ना इट गोज बिहाइंड द नेक ऑफ द ह्यूमरस, ओके, और इधर में एक मसल है इसका डेल्टॉइड मसल, ये वाला इसको सप्लाई करता है, ठीक है। तभी अगर फिर से उस पेशेंट का अगर इधर नेक में फ्रैक्चर है, ह्यूमरस के नेक में फ्रैक्चर, एंड इफ द ऑर्थोपेडिक सर्जन इज बीइंग रिलक्टेंट देन ही माइट इंज्यूर द एक्सिलरी नर्व आल्सो। तो एक्सिलरी नर्व की इंजरीज होने से क्या होगा, द डेल्टॉइड मसल विल नॉट गेट एनी मोर नर्व सप्लाई, ठीक है। तो हमारा देखना डेल्टॉइड मसल ऐसा होता है। अभी एक्सिलरी नर्व के इंजरी होने से कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ। दिस इज द नॉर्मल साइड, ओके, और ये जो पूरा फ्लैट होकर रखा है बिकॉज डेल्टॉइड मसल इज नॉट गेटिंग द नर्व सप्लाई, ठीक है।
तो फ्लैट हो जाता है. ओके, कॉन्ट्यूर बोलते हैं. कॉन्ट्यूर इज लॉस्ट. कॉन्ट्यूर ऑफ द डेल्टॉइड मसल इज लॉस्ट. ठीक है. Here, this is very important. Always try to pick a bone जिसमें बहुत सारे clinical importance correlations है, because these days it is everything about clinical. Okay, so इसमें बहुत सारे हैं जो मैं अभी बोल रहा हूँ. ठीक है, because नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन के बाद दे विल बी आस्किंग अबाउट क्लिनिकल सिनेरियोज ऑन. ठीक है, कि उसको सर्जिकल नेक क्यों बोलते हैं, दिस एंड दैट. ओके, नाउ दिस इज रेडियल नर्व. इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, देन ह्यूमरस के पीछे से एक रेडियल ग्रूव गया था, उस ग्रूव में से रेडियल नर्व भी निकलता है. कैसा? ये देखो, ये जो पीछे वाला दिस वन, दिस इज द रेडियल नर्व. रेडियल नर्व इन द रेडियल ग्रूव. अभी देयर इज अ सिनेरियो, ये भी पूछता है, जैसे कि रेडियल नर्व इंजुरी, मिड शाफ्ट इंजुरी. ओके, दे विल बी आस्किंग यू मिड शाफ्ट इंजुरी ऑफ ह्यूमरस, व्हिच नर्व इज इंज्योर्ड? रेडियल नर्व. ओके, अगर ये वाला टूट जाए तो इधर से भी या इधर से भी, पीछे से तो डायरेक्ट होगा, और इधर से अगर टूट जाए तो इसके फ्रैगमेंट्स जो निकलेंगे, दैट माइट इंज्यूर द रेडियल नर्व जो ग्रूव में है. ठीक है, अभी रेडियल नर्व के इंजरी होने से क्या होता है मैं बोलता हूँ. ठीक है, इससे पहले मैं ये बोल लेता हूँ अल्नर नर्व. मैंने बोला था उस दिन अल्नर नर्व के बारे में भी, इफ यू रिमेंबर, पेरिफेरल ब्रांचेस में से मैंने ये सब बोले थे. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब दिखेगा तुमको, वी विल शो यू दिस. ये अल्नर नर्व भी है. ठीक है, हमेशा याद रखना अल्नर नर्व मीडियली होता है. ठीक है, मोस्ट मीडियल. नाउ दिस वन इज द अल्नर नर्व, ये वाला पार्ट. ओके, दिस वन. नाउ अल्नर नर्व कहाँ से जाता है? दिस इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल, दिस इज द लेटरल एपिकॉन्डाइल. इसके पीछे से जाता है अल्नर नर्व. ओके, इफ यू आर नॉट इनफ, इफ यू हैव डन दिस इन द स्कूल बाय स्ट्राइकिंग द दिस मीडियल एपिकॉन्डाइल पार्ट, किया है किसी ने? ओके, कभी ट्राई करना. हमेशा होगा नहीं ऐसा, बट यू सेमी फ्लेक्स दिस पार्ट. ओके, दिस इज फुल फ्लेक्शन, दिस इज सेमी फ्लेक्शन. ओके, यू विल सी ए थिंग दैट इज रोटेटिंग. ओके, इधर एक मिलेगा तुमको. इफ यू आर स्किनी एनफ, ओके, एंड इफ यू स्ट्राइक दिस पार्ट, इधर में बहुत सारे सेंसेशन होगा, सेंसेशन आ जाएगा. ठीक है, बिजली जैसा. ठीक है, उसको बोलते हैं, क्योंकि उसके पीछे से जाता है अल्नर नर्व. ये तीनों क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकल कोरिलेशन है ह्यूमरस. अगर ये दिया तो पूछेगा मीडियल कॉन्डाइल के एपिकॉन्डाइल के पीछे से कौन सा नर्व जाता है. ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट दिस मिड शाफ्ट इंजरी. कौन सा नर्व जाएगा? रेडियल नर्व. नाउ रिमेंबर ऑलवेज दिस इज रेडियल नर्व. ठीक है, ये पोस्टीरियर क्वाड में से आता है. पोस्टीरियर क्वाड, ब्रैकियल प्लेक्सस तो वरे नहीं है, बट छोड़ो. ठीक है, देयर आर 3 कॉर्ड्स, लेटरल, पोस्टीरियर, मीडियल. अभी पोस्टीरियर कॉर्ड में से 2 नर्व, पेरिफेरल नर्व आते हैं. एक एक्सिलरी जो इधर जाता है, एक रेडियल. ये रेडियल वाला पार्ट इधर से होके पीछे जाता है, ये रेडियल ग्रूव में से. फिर इधर में आके 2 भाग होता है, एक सुपरफिशियल भाग होता है और एक डीप पार्ट होता है. ठीक है, इस फोराम में से जाता है. नाउ always remember the posterior aspect of this forearm, that is flexor extensor. ये कौन सा पार्ट है? एक्सटेंसर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म. ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पीछे में जा रहा है रेडियल नर्व, तो ये पीछे वाले मसल को ही सप्लाई करेगा, दैट इज एक्सटेंसर. नाउ सोचो तुमको इधर लगा चोट. ओके, योर ह्यूमरस इज ब्रोकन. ठीक है, तो द रेडियल नर्व इज इंज्योर्ड. तो रेडियल नर्व किसको सप्लाई करते हैं? इस पार्ट को. ठीक है, इस पार्ट को करता है, इस पार्ट को भी करता है. तो द थिंग इज यू कैन नॉट, इस पार्ट में क्या होता है? एक्सटेंशन होता है. दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन. ठीक है, नाउ तुमको थोड़ा सोचना होगा. दिस इज फ्लेक्शन, ये रिस्ट का भी फ्लेक्शन है ये. ठीक है, ये रिस्ट का एक्सटेंशन है. ठीक है, तो एक्शन इज गॉन. क्यों? रेडियल नर्व एक्सटेंसर मसल को सप्लाई करता है. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है, रेडियल नर्व सप्लाइज द एक्सटेंसर मसल, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट. अगर ये वाला
एक्शन तुम कर नहीं पाओगे बिकॉज द एक्सटेंसर मसल्स आर गॉन, क्योंकि रेडियल चला गया। तो तुम एक्सटेंशन कर नहीं पाओगे। अगर तुम एक्सटेंशन कर नहीं पाओगे तो दिस विल ओवर पावर, द फ्लेक्सर पार्ट विल ओवर पावर, तो हाथ ऐसा हो जाएगा, ओके ऐसा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप, दिस इज कॉल्ड फिंगर ड्रॉप, ओके। एक्सटेंशन नहीं होगा तुमसे, फ्लेक्स होकर रखेगा हाथ, ओके। ये क्वेश्चन आता है, यू शुड राइट देयर इन योर पेपर, रिस्ट ड्रॉप या एक्सटेंसर मसल्स विल बी पैरालाइज्ड, ठीक है। तो एक्सटेंसर मसल काम नहीं करेगा, तो यू कैन नॉट एक्सटेंड द हैंड। हाँ हाँ, रिस्ट ड्रॉप और फिंगर ड्रॉप एक बार फिर से बता सकता हूँ। हाँ, so if you remember the winging of scapula, अभी everyone knows, but I will not ask you because मुझे पता है तुम बोल नहीं पाओगे, okay? There was this muscle nerve to serratus anterior, ठीक है, ये हमें लगा था anterior aspect of scapula on the medial side. Here the serratus anterior muscle is attached. इसके ठीक पीछे इस जगह पे, इसके ठीक पीछे मतलब posterior aspect of scapula there is rhomboid muscle that is attached. ये एक दूसरे को ओपोज करता है, one is antagonist, one is protagonist, मतलब जगह पे रहता है स्केपुला ऐसे, ठीक है। अगर एक पैरालाइज होगा तो दूसरा ओवर पावर कर जाएगा, ठीक है। सो द nerve to serratus anterior that is damaged during breast surgery जो भी हो, ओके, हो जाता है, तो द serratus anterior muscle is paralyzed, मतलब ये पैरालाइज हो चुका है, तो इसका ऑपोजिट साइड का मसल ओवर पावर करेगा जिसका नाम है rhomboid, ठीक है। तो तुम जब rhomboid मसल ऐसा करके रहता है, these are the vertebra और ऐसा करके रहता है rhomboid मसल, तो जब तुम ऐसा पुश करोगे ये ऐसा ऊपर उठ के आ जाएगा, क्योंकि ये है नहीं, ये पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। वैसे ही इधर में दिस इज फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, okay, this is also flexor, this is extensor aspect of forearm, these are the extensor muscles, these are the flexor muscles. Now radial nerve कैसे आता है? radial nerve इधर से आके तीन कॉर्ड होता है, जिसमें से posterior कॉर्ड से radial nerve आता है, इधर में radial nerve radial ग्रुप में से जाता है, इधर तक आता है lateral condyle तक, आके दो भाग होता है, superficial, deep, ये deep वाला पार्ट supplies the extensor aspect of forearm, इसलिए हम एक्सटेंड कर पाते हैं, ये एक्सटेंड कर पाता है, ऐसा कर पाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट हैंड जो भी है, ठीक है। अभी अगर रेडियल नर्व हो जाए इंज्यूर्ड तो हम एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। सोच ऐसा होके रखे हम ये नहीं कर पा रहे, ऐसा होकर, बट ऐसा होके नहीं रखा होगा, क्यों? द फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज ओवर पावर्ड नाउ, सो ऐसा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप और फिंगर ड्रॉप, है बुक में, देखना समझ में आ जाएगा, ओके। ये होता है रेडियल नर्व इंजरी, ये क्लिनिकल सिनेरियो में क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। नाउ अल्नर नर्व इंजरी, दिस इज अल्नर नर्व। अल्नर नर्व कहाँ पे रहता है? यहाँ पे रहता है, दिस वन, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे, ठीक है, इधर में। अभी अगर ये टूट गया बाय एनी रीजन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, जो भी हो, द मीडियल एपिकॉन्डाइल इज ब्रोकन, द अल्नर नर्व इज इंज्योर्ड। अल्नर नर्व मीडियल रहता है, द मोस्ट मीडियल नर्व, ओके। तो ये ऐसे जाके मीडियल वाले उंगली को सप्लाई करते हैं, द अल्नर नर्व सप्लाई दिस टू, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ठीक है। तो जो होगा अल्नर नर्व की इंजरी में इन दोनों में दिखेगा हमको, क्या दिखेगा? ये दोनों दिखेगा, दिस वन एंड दिस वन। देयर आर सम मसल्स ऑफ हैंड कॉल्ड लंबराइकल्स, पढ़ाया जाएगा क्लास में, ओके, मसल्स ऑफ हैंड। तो उनका काम ये है, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, इधर
8 बोन है जिसको बोलते हैं कार्पल बोन्स. दीज आर द मेटाकार्पल, दीज आर द फेलांगस, ये सारे. ठीक है. नाउ ये जो लम्ब्राइकल्स है उनका काम क्या है? कार्पल बोन्स एंड फेलांगस का, मेटाकार्पल फेलांगस. ठीक है. तो ये इन दोनों के बीच में एक जॉइंट होता है जिसको बोलते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट. ये वाला जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है. ठीक है. These are the metacarpal bones. These are the phalanges. So this thing, this joint is called metacarpophalangeal joint. इसको ऐसा करते हैं, फ्लेक्स करते हैं. ठीक है. तो अल्नर नर्व इंजरी में अगर लम्ब्राइकल्स चला गया, पैरालाइज हो गया, वी कैन फ्लेक्स इट. तो ये एक्सटेंड होकर रखेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा कर नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा क्योंकि इधर का मसल ओवर पावर कर लिया. ठीक है. ये एक चीज़ होता है. और दूसरा चीज़, these are the phalanges, these are the interphalangeal joint. एक जॉइंट इधर, एक जॉइंट इधर. ठीक है. इधर 2 है, इधर 3 है. ठीक है. these are the phalanges. now these are the interphalangeal. ये interphalangeal joint है, ये भी interphalangeal joint है. now ये हम लोग एक्सटेंड करते हैं, लम्ब्राइकल्स इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको फ्लेक्स करता है और इसको एक्सटेंड करते हैं. ठीक है. इसको सुन लो. इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स को क्या बोला था? एक्सटेंड करते हैं. ठीक है. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स करते हैं. तो हम ये अगर चला गया लम्ब्राइकल्स तो ये फ्लेक्स कर नहीं पाएंगे, हो जाएगा ऐसा. ठीक है. और ये जो जॉइंट है इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, इसको करते हैं एक्सटेंड. अगर ये चला गया तो ये फ्लेक्स होकर रखेगा, ऐसा करते हैं. ये जो दोनों दिख रहे हो. ठीक है. इसको बोलते हैं क्लॉइंग क्लॉ. ठीक है. इसको बोलते हैं अल्नर क्लॉ हैंड. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. एवरीथिंग क्लिनिकल यू शुड नो बिकॉज दिस माइट कम इन द एग्जाम. सो दिस इज. और जब हैंड्स ऑफ मसल पर आया जाएगा तब और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. नाउ now this is about the fracture of surgical neck of humerus. एक्सिलरी नर्व इंजरी हो सकता है और वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स. देयर इज दिस थिंग, ये नॉट रिलेटेड टू ह्यूमरस बट ऐसे ही बोल रहा हूँ. दैट इज रेजिमेंटल बेयर साइन. ओके. जो फोर्स में, आर्म फोर्स में ऐसा बेयर पर आते हैं इधर. ठीक है. ओके. सो उधर में या फिर इधर मेडल्स वगैरह या जो भी देते हैं, दे हुक ए पिन हेयर या फिर इधर. ठीक है. तो होता क्या है, इसको क्यों ऐसा बोलते हैं? ड्यूरिंग कभी किसी ने अगर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, मतलब मसल में अगर इंजेक्शन खाया है, इधर दिया है किसी का, पीछे वाले में भी दिया होगा बट इधर भी दिया है. ठीक है. तो अभी होता क्या है, द नर्स इज नॉट, जो भी है, अच्छा नहीं है, जो भी है, अगर इधर में दे दिया तो इधर तो एक्सिलरी नर्व है ना, दैट एक्सिलरी नर्व में इंजरी हो जाएगा ड्यूरिंग द इंजेक्शन. अगर ज़्यादा घुसा दिया तो उसमें से होगा क्या, वही होगा जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर में होता है. दैट द डेल्टोइड मसल, द सेंसेशन ऑफ डेल्टोइड मसल विल बी गॉन, इट विल लूज इट्स कॉन्ट्यूर. ठीक है. फ्लैट हो जाएगा ऐसा. ठीक है. इसको रेजिमेंटल बेयर साइन बोलते हैं क्योंकि रेजिमेंट में भी ऐसा पिन वगैरह के साथ है. ये ऐसे ही बोलते रहते हो. नाउ अनदर थिंग, डेल्टोइड मसल अगर इंज्योर हुआ, तुम एक तो इधर लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, कॉन्ट्यूर चला जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. और क्या होगा, यू कैन नॉट डू 15 से 90 डिग्री का एबडक्शन. यू कैन नॉट डू दिस. क्यों? मैंने बोला था SITS. SITS if you remember, the supraspinatus muscle is doing the 0 to 15 degree. Supraspinatus 0 to 15 करते हैं, बाकी 15 से 90 is done by deltoid. वो तुम कर नहीं पाओगे. ओके. यू कैन नॉट abduct your arm. ओके. और उसके ऊपर जो भी है वो ट्रापेजियस मसल करते हैं, ट्रैप्स मसल. ठीक है. सो दिस इज supracondylar fracture of humerus. If you remember condyles, medial condyle, lateral condyle. ठीक है. This is supracondylar fracture of humerus.
उस दिन आई डोंट नो किसी ने तो पूछा था कि फ्रैक्चर होने से ही इसका मेल यूनियन मतलब जो ऑपरेशन होता है वो अगर ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा। ओके बाय द वे, तो उसमें से क्या होगा ये हो सकता है अगर वो गंदा वाला ऑपरेशन हुआ तो हमारा हाथ ऐसा हो जाएगा। ओके, इट विल नॉट लुक गुड कॉस्मेटिकली, प्लस इट विल नॉट बी फंक्शनल पहले जैसा। ओके, अगर इसका ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। ओके, इसको ऐसे ही बोलते हैं गन स्टॉक, ऐसा गन का स्टॉक जैसा दिखता है इधर आके इधर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गन स्टॉक डिफॉर्मिटी। ये चीज़ देखना एक लाइन का ही होगा, बट दिस इज योर टास्क। वॉल्कमैन इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर ये क्या है, यू विल गो एंड सी। इट इज समथिंग रिलेटेड टू द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ मसल। अगर इधर फ्रैक्चर होगा, कौन सा वेसल इंज्योर होगा, व्हाट विल बी द इंज्योर्ड वेसल, इधर जो कि सुप्राकॉन्डेलर है। अगर इधर ये ह्यूमरस टूटा है, व्हाट इज द वेसल दैट विल बी इंज्योर्ड। दैट्स व्हाई उस दिन मैंने ब्रीफिंग दिया था, बट परे तो नहीं हो। कौन सा, एनी आइडिया? ब्राकियल आर्टरी देखना जाके, ब्राकियल आर्टरी। तो ये दिस इज डिसलोकेशन। ओके, ये नॉर्मल नहीं, दिस इज द ग्लेनोइड कैविटी ऑफ योर स्कैपुला, ये निकल आता है इजीली। ठीक है, इसको डिसलोकेशन एक्सरे में ऐसा दिखता है। ऐसे नाउ दिस वन लास्ट स्लाइड, टेनिस एल्बो, वल्फर्स एल्बो। बहुत सुना होगा या फिर नहीं भी सुने, बहुत सुनने वाले हो, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन कि इनमें जो टेनिस खेलते हैं, जो गोल्फ खेलते हैं। Now it is related to the common flexor origin या फिर common extensor origin। ठीक है, now in the tennis अगर तुमने खेला है, you do this section बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, this part is getting in या getting triggered again and again, this part जो कि है extensor part, क्योंकि ये common extensor origin है। और गोल्फ में यू डू डी सेक्शन में ये वाला पार्ट। ओके, बार बार ऐसा करोगे, देयर विल बी हाइपर एक्सटेंशन एंड दिस पार्ट विल बी ट्रिगर्ड अगेन एंड अगेन गोल्फ में। ठीक है, तो कॉमन फ्लेक्सोर रीजन में नाउ होगा क्या, देयर विल बी पेन, देयर विल बी टेंडरनेस। व्हाट इज पेन एंड व्हाट इज टेंडरनेस? देयर विल बी टेंडरनेस एंड पेन। ठीक है, पेशेंट विल बी कमिंग टू यू दिस कॉम्प्लिकेशन या फिर सिम्टम्स, आई एम हैविंग पेन हेयर, टेंडरनेस हेयर, देयर विल बी रेडिश इन्फ्लेमेशन, ऐसा ऐसा बहुत कुछ होगा। ओके, ये पिछली बार एक दो जन को पूछा था, हु हैव पिक्ड ह्यूमरस। ओके, व्हाट इज टेनिस एल्बो, व्हाट इज गोल्फर्स एल्बो। ठीक है, तो कौन से मसल इन्वॉल्व होंगे, इफ यू प्ले गोल्फ बहुत ज़्यादा, दिस मसल मतलब ये फ्लेक्सर पार्ट में ज़्यादा पेन होगा। अगर यू प्ले या क्या बोलते हैं इसको, टेनिस, तो इधर ज़्यादा पेन होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमरस।